Hello everyone, welcome to Apti Plus, the Academy for Civil Services. Today we are here to discuss the UPSC CSE weekly current affairs, and that is from 14th of January to 21st of January 2025. Now let us start our discussion. The discussion will also be in the form of MCQ and your mains based question answer. So let's start with the first question. With reference to Genome India project, consider the following statements. The project aims to map the genetic diversity of India by sequencing the genome of select number of individuals across diverse ethnic groups. The project is spearheaded by Ministry of Health and Family Welfare. One of its objectives is to develop precision healthcare solution tailored to Indian population. So as far as these three statements are considered, see, we should know that yes, the Genome India project was started in order to map the genetic diversity. So your first statement is correct. To understand the sequencing of the DNA, the genes of individuals, and the group, the number of individuals across different regions were taken, and there are around the sample was of 10,000 people. However, the statement 2, which is saying that it is the task of Ministry of Health and Family Welfare, no, this statement is wrong because it was under Department of Biotechnology. Now, next statement is that its objective is to develop the प्रिसीशन हेल्थ केयर. सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. हम जब जीन की मैपिंग करेंगे, जब उनके सीक्वेंस को पता करेंगे, सो उसका क्या बेनिफिट होता है कि वी अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन, एनी चेंजेस दैट इज हैपनिंग. सो एनी particular disease prevalent in certain geographical region or in certain population. For example, there is Japanese encephalitis, especially in in eastern India, especially Bihar side. सो ऐसे डिजीज के लिए या आपके जैसे कैंसर है जैसे डिजीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इवन ड्रग डिलीवरी के लिए या कोई इमेजिंग करनी हो या स्कैनिंग करनी हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड योर आंसर विल बी 1 and 3. We can also have a look on the explanation. As far as second statement is concerned, that it is led by your Department of Biotechnology, which falls under the administrative domain of Ministry of Science and Tech, not Health and Family Welfare. So we should also remember the departments. Why this was in news? Because abhi ek historical milestone we have achieved where there was Genome India Data Conclave that was held in Delhi. एक ही कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये डेटा सेट को रिलीज किया गया है. ये प्रोजेक्ट तो आपका बहुत पहले से चल रहा है, बट ये डेटा सेट रिलीज हुआ है, इसलिए ये वापस से न्यूज में आया है. एंड इसके साथ साथ हमने एक फ्रेमवर्क भी रिलीज किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ डेटा प्रोटोकॉल्स, क्योंकि ये बहुत प्रिवेसी बेस्ड डेटा होता है, बहुत सेंसिटिव डेटा होता है. तो इसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है, जिससे कि व्हाट विल बी द प्रोटोकॉल्स for exchange of such data, and there will be construction of Indian biological data centers and the portal on that will also be launched. तो हमें ये सब के बारे में भी पता होना चाहिए. Now moving on to our next topic, जो कि इससे रिलेटेड है with respect to genome sequencing. तो क्वेश्चन है इस पे, genome sequencing involve determining the entire DNA sequence of organisms genome. The Human Genome Project was first initiative to sequence the genome of any organism. Next generation sequencing is faster and more cost effective than traditional Sanger sequencing. So your answer in this is 1 and 3. The second statement is wrong because Human Genome Project से पहले भी एक अर्थ जीनोम स्टडीज हुई थी जो ग्लोबल लेवल पे हुई थी. सो दैट वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव, नॉट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. जो इंडिया में चल रहा है वो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है. एक है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड अनदर इज जो पहले हो चुका है अर्थ जीनोम से रिलेटेड, वो ग्लोबल लेवल पे. तो देयर आर 3 सच प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन. नाउ लेट्स सी द सम इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू जीनोम सीक्वेंसिंग. जीनोम सीक्वेंसिंग हम क्या करते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, कौन से जीन किस चीज को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं वो पता करते हैं.
एंड डेफिनेटली एक नया टेक्नोलॉजी आई है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जो ट्रेडिशनल सैंगर सीक्वेंसिंग थी उससे बेटर है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग refers to process of determining the precise order of nucleotides, that is adenine, thymine, cytosine and guanine in organisms DNA। तो हमारा जो डीएनए होता है, जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा, जनरल स्टडीज में, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और वो एक ऑर्डर में होते हैं, जैसे कि ATCG या एक और होता है। तो उसकी जो सीक्वेंसिंग करते हैं उसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इससे हर ह्यूमन बीइंग का और स्पीशीज का एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट डेवलप कर सकते हैं। कौन सा जीन कौन सी डिजीज और कौन से ट्रेट, जैसे कि हमारे काले आंखें होंगी या लाइट कलर की होंगी, वो ये सारी चीजें कौन सा जीन डिटरमाइन करेगा, ये सब अंडरस्टैंडिंग वी कैन डेवलप। तो जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना बेटर डेटा होगा, वी कैन रिस्पॉन्ड कॉरस्पॉन्डिंगली। Now, Human Genome Project, it was completed in 2003 and it was the first large-scale effort to sequence the entire human genome. For example, even the genome of bacteria, for example, Haemophilus influenza was also done, predating this Human Genome Project. तो इससे पहले हमने बैक्टीरिया का जीनोम सीक्वेंसिंग कर चुके थे, तो ये ह्यूमन पे करना इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड जो NSG टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा जल्दी लार्ज वॉल्यूम में और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे में आपका जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकती है, सो दैट्स व्हाई इट इज बेटर एंड कॉस्ट इफेक्टिव। अनदर प्रोजेक्ट्स जो हमें पता रहने चाहिए, बाई चांस आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किस कंट्री का है या कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, दैट वी शुड ऑल्सो नो। एक आपका आ रहा है 1+ मिलियन जीनोम इनिशिएटिव, ये किसका है? यूरोपियन यूनियन का है। एक है अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट, ये ग्लोबल लेवल पे है और इसको कौन सपोर्ट करता है? इंडिया, चाइना एंड USA। तो these are the other 2 projects that are also going on. Now let us move to our next question. It was asked in your 2019 also, and again it is in news with respect to methane hydrates. Now first statement is global warming might trigger the release of methane gas from these deposits, means deposits of your methane hydrate. Second, large deposits of methane hydrates are found in Arctic tundra and under the sea floor. The third is methane in the atmosphere oxidizes to carbon dioxide after a decade or 2. तो आपका ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो मीथेन होती है, एज वी नो, इट इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। तो जब मीथेन आपकी रिलीज होगी इन डिपॉजिट्स में से, तो ये ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर कर सकती है। एंड जब ग्लोबल वार्मिंग कैसे ट्रिगर करेगी? हर ग्रीन हाउस गैस का एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। इफ वी कंसिडर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 1, तो जो आपका मीथेन का होता है वो 12 होता है। तो ये एक टेबल है हमारा, बुक में दिया रहता है एनवायरमेंट की, दैट यू कैन रेफर विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ वेरियस गैसेस। और जो आपका SF6 सल्फर फ्लोराइड गैस होती है उसका सबसे मैक्सिमम होता है। तो ये एक चीज और हम याद कर सकते हैं। तो मीथेन अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी तो वो ऑक्सीडाइज होगी मींस ऑक्सीजन का एडिशन, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह अपना गैस जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कंट्रीब्यूट करेगी। और जो इसकी पोटेंशियल होती है वो 12 इयर्स होती है, तो मींस इक्वल टू डेकेड। सो योर थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ विद रिस्पेक्ट to the presence where these methane hydrates are found, these are found under your Arctic tundra, means जो आपकी आर्कटिक की बर्फ है उसके नीचे जमीन में दबे हुए ये हैं। और जो हमारा बाकी सी फ्लोर है, पूरे वर्ल्ड के अराउंड जितने भी ओशंस हैं उनके अंदर नीचे जमीन में मीथेन हाइड्रेट है। अब जैसे जैसे जहां भी बर्फ पिघलेगा या बाई चांस कहीं पे ये सी फ्लोर एक्सपोज हो जाते हैं या कोई हम डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं,
So these gases, these hydrates get exposed and cause your global warming. So your second statement with respect to the positioning of methane hydrates is also correct. So answer will be D, all. Why this is in news? Because WMO, that is World Meteorological Organization, has confirmed that 2024 is the warmest year. ये तो हम जैसे देखते ही आ रहे हैं कि हर 10 साल में और हर साल हमारे को बोल देते हैं कि वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दैट वी ऑल नो, बट इस साल भी हो रहा है एंड इसमें मीथेन हाइड्रेट भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑन अ लार्जर स्केल. सो दिस हैज आल्सो बीन सेड बाय योर WMO. तो मीथेन हाइड्रेट इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड PYQ भी आज हो रखा है इस पे. तो वी शुड सी कैसे मीथेन हाइड्रेट बनते हैं. Now first thing is methane hydrates are stable under a specific condition of low temperature and high pressure. Means बहुत ठंडी में हाई प्रेशर में ये डेवलप होते हैं एंड डिपॉजिट हो जाते हैं और ये स्टेबल रहते हैं उसमें. लेकिन अगर ये बाहर आते हैं, किसी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं, तो दे कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू मीथेन गैस विच इज अगेन your greenhouse gas. So second statement is they are abundant in the permafrost region, Arctic, and then the sediments beneath the ocean floor across the continental margin. तो continental margin पे पानी के नीचे ये है, प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, तब हम नीचे जाते हैं समुद्र के, तो ये वहां भी रहते हैं. नेक्स्ट थिंग इज they have relatively shorter atmospheric life of 10 to 12 years, and this also correspond to their global warming potential, which is 25 times greater than of CO2. तो ये इवेंचुअली ऑक्सीडाइज होंगे, इनका टाइम पीरियड तो कम रहेगा, दैट इज 10 to 12 years, लेकिन इनकी जो ये कंट्रीब्यूशन करेंगे वो CO2 से भी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करेंगे. तो दैट इज वाई दे आर मोर हार्मफुल देन CO2, which we need to take care of, कि उनको नीचे रहने देते हैं, स्टेबल कंडीशंस में रहने देते हैं. क्योंकि WMO भी न्यूज में रहा है, इसको भी देख सकते हैं हम. WMO एक तो आपकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, देयर आर 19 स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो वन ऑफ देम इज WMO. अदर्स यू कैन सी द लिस्ट. एक जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूनेस्को, ILO, ये सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं यूनाइटेड नेशंस की. WMO वाज फॉर्म्ड as International Meteorological Organization in 1873. However, in the present form, it was established in 1950, where it became the specialized agency of UN for meteorology, weather, climate, operational hydrology, and related geophysical sciences. So it's basically the United Nations voice on the subject of Earth's atmosphere, its interaction with the climate it produces, its interaction with the ocean, and the distribution of the water resources across the globe. So ये उस स्पेशलाइज्ड एक बॉडी है UN की. ठीक है, इसमें 193 मेंबर हैं. हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन with respect to golden langur. The statements are, it is listed as critically endangered on the IUCN Red List. It is endemic to Indian state of Assam and parts of Bhutan. And habitat fragmentation and loss due to shifting cultivation are major threats to its survival. So the first statement is wrong. Only second and three. Yes, it is endemic to Assam and parts of Bhutan, and habitat fragmentation and loss are the reason for its threat. But it is not critically endangered. It is endangered only. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है. अब जैसे कुछ स्पीशीज होती हैं जो स्पेशली क्रिटिकली एंडेंजर होती हैं, कुछ होती है एंडेंजर्ड जो बहुत न्यूज में रहती है. तो गोल्डन लंगूर एक वो ही स्पीशीज है, तो इनके बारे में तो आपको पता रहना चाहिए. तो सेकंड ऑप्शन 2 and 3 इज करेक्ट. अभी एक हाईवे आपका 117 है जो आसाम से पास होता है, उसमें एक गोल्डन लंगूर की डेथ हो गई थी. फॉर दैट देयर वर सर्टेन कंसर्न्स बीइंग रेज्ड अबाउट दिस स्पीशीज. दैट्स व्हाई ड्यू टू इट्स डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑल्सो दिस वाज इन न्यूज. तो गोल्डन लंगूर इज
categorized as endangered, and it is found in very small region, that is in वेस्टर्न आसाम एंड सदर्न भूटान. तो पूरी दुनिया में बस यहीं पे मिलता है. और ये 2 रिवर्स के बीच में खासकर पाया जाता है, आपका मानस एंड संकोश इन आसाम. ये दोनों आसाम से निकलती है. मानस आपकी ईस्ट साइड में पड़ती है, संकोश आपकी वेस्ट साइड में, जिसके बीच में ये इसकी रेंज है. और यही का ये एंडेमिक है. एंडेमिक होने का मतलब जो ओरिजिनली यहां से है. तो गोल्डन लंगूर इज ओरिजिनली फ्रॉम वेस्ट आसाम एंड सदर्न Bhutan. It is facing the threats of habitat destruction by shifting cultivation, which is called jhum in northeast. See, you can see the photograph of this golden langur, and its species name is Trachypithecus G. Geographical location we have seen, and the habitat it lives in is subtropical and temperate broadleaf forest above the 3000 meters. तो थोड़ा हाइट पे मिलता है 3000 मीटर की. एंड इट इज अ डायरनल, मीन्स इट इज एक्टिव ड्यूरिंग डे एंड लिव्स इन ट्री. सो इट इज आर्बोरियल, जो पेड़ पे रहता है. डायरनल, जो दिन में जग के एक्टिव रहता है, नॉट नॉक्टर्नल. तो ये भी ध्यान रखना है कौन सी स्पीशीज डायरनल है, कौन सी nocturnal है, because that was also asked in UPSC. And the CITES status is in Appendix 1, and it is highly protected under your Wildlife Protection Act of 1972 in India. So this is all with respect to golden langur, जो जिस पे क्वेश्चन बन सकता है. And they live in accordance with their behavior. ये ग्रुप्स में रहते हैं, 3 से 15 लोग एक साथ रहेंगे. Typically with the सिंगल मेल विद मल्टीपल फीमेल्स, या तो फिर खाली मेल का ग्रुप मिलेगा. सो ये आपका ऑल द बिहेवियर, पैटर्न ऑफ लिविंग, द रेंज, द टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड द प्रोटेक्शन दैट इज अकॉर्डेड टू दिस स्पीशीज. सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. नेक्स्ट इज एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया plays a pivotal role in development of atomic energy. Consider the following statements about AEC. It was established in 1948 by an act of parliament. It is directly under control of Department of Atomic Energy, which reports to Prime Minister. The first chairman was Homi J. Bhabha. So 2nd and 3 are correct. It was, with respect to the establishment, it was established in 1948, but not by an act of parliament. It's not an statutory body, it's an executive body. अगर किसी कानून से पारित होता है तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, लेकिन ये एक आदेश, सिंपल सरकारी आदेश से पारित किया गया है. इट्स एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, नॉट द स्टैट्यूटरी बॉडी. सो आंसर विल बी 2 and 3. डायरेक्टली पीएमओ को रिपोर्ट करना है. दिस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर ये बॉडी वर्क करती है. एंड द फर्स्ट chairman was Homi J. Bhabha, who is also responsible for development of nuclear program of India, and he is known as father of Indian nuclear program. So this was all with respect to the AEC. The government has recently reconstituted this commission under Ajit Kumar Mohanty, the secretary of DAE, who is the chairman of AEC, and National Security Advisor Ajit Doval is among its key members. So Ajit Kumar Mohanty is the new chairman. That's why this body was in news. Next is, with respect to turmeric, consider the following statements. Turmeric contains curcumin, which is responsible for its yellow color and has anti-inflammatory properties. So हल्दी में तो कर्क्यूमिन होता है, ये हमें पता रखना है. इट्स अ फैक्ट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स येलो कलर एंड इट हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज. So this statement is correct. India is the largest producer of turmeric in the world. Yes. Turmeric requires high altitudes and cold climate for its cultivation. No. जब इंडिया इतना बड़ा प्रोड्यूसर है तो इतना कोल्ड क्लाइमेट नहीं रहता है इंडिया में. So largely 2 and 3 are contradicting. So 2 is correct. So automatically 3 is
Incorrect. So 1 and 2 will be your answer. So recently your Ministry of Commerce and Industry has launched this National Turmeric Board and इसका headquarter कहाँ है आपका? निजामाबाद, तेलंगाना में. So with respect to curcumin, that is with respect to turmeric, curcumin is the bioactive compound which gives its distinctive color to the turmeric, and according to the studies it is highly beneficial for us. That is, it is anti-inflammatory, having a lot of antioxidants and antimicrobial effects. ये तो हमें पता ही है, हल्दी का दूध पीने से कितने फायदे होते हैं जिसे. And India is the world largest producer, consumer, as well as the exporter of turmeric. And which are the largest producing state? That is your Telangana, Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh. And यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट तो होते नहीं है, तो जाहिर सी बात है टर्मरिक आपका वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में मिलता है. ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में ही ग्रो करता है, स्पेशली इन लोमी एंड द क्लेई सॉइल with temperature conditions is 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. High altitudes and cold climates are not at all suitable for your turmeric, that is haldi. Now let us also have a slight look on National Turmeric Board, which is recently being constituted by your Ministry of Commerce. And we must also know that according to Ministry of Commerce and Industry, it has increased its product dedicated boards. तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे और भी बोर्ड्स हैं, जैसे रबर बोर्ड है, स्पाइस बोर्ड है, टोबैको बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, टी बोर्ड है. अब एक नया ऐड हो गया है टर्मरिक बोर्ड. एंड बोर्ड जो होते हैं, एक तो ये सारे जितने भी हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं. अनदर थिंग इज there will be a chairperson that will be appointed by your center governments. There will be other representative in such boards, for example Ministry of Ayush, Department of Pharmaceutical, Department of Agriculture, Department of Commerce. ये थोड़ा लॉजिक वाला है तो आप लॉजिक लगा के याद रख सकते हैं. देखो आयुष होगा ही, फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल प्रॉपर्टी पता करने के लिए, एग्रीकल्चर क्योंकि फार्मर इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व. द कॉमर्स मिनिस्ट्री इज कॉन्स्टिट्यूटिंग, सो कॉमर्स मिनिस्ट्री के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. So that was with respect to turmeric boards and the other boards that are present in India. Now next is, which of the following describes the mission Mausam most accurately? With respect to mission Mausam, this was also asked previously. So it's an initiative of Government of India to enhance the capability of India's weather department in weather forecasting. तो मौसम से हमें याद रखना चाहिए वेदर डिपार्टमेंट का है. It's a very large scale initiative of India's meteorological department, and the budget has allocated around 2000 crore for its first 2 years of implementation for this mission. So इसमें हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? अपनी वेदर फोरकास्टिंग की टेक्निक्स को इम्प्रूव करना है, एक्यूरेसी बेटर करनी है, स्पेशली शॉर्ट टू मीडियम रेंज की, एंड लार्जली इन द मेजर मेट्रो सिटीज एंड कंट्रीज. द IMD जो है हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसकी जो अभी एक्यूरेसी है, जितने भी हीट वेव्स और ये सब होते हैं इनका फोरकास्ट करने की, इट्स 98%. अर्लियर बिफोर दिस मिशन इट वाज ओनली 80%. सो हमने इस मिशन से बहुत इम्प्रूव करी है अपनी एक्यूरेसी. सो वी विल यूज सम एडवांस टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, other high performing computers. So other thing is cloud chamber research will also be done at your IITM Pune, that is Indian Tropical Meteorological Department, Institute of Tropical Meteorology in Pune. तो इसमें हम क्लाउड सीडिंग के भी एक्सपेरिमेंट्स करे थे, जैसे हमने कानपुर में. सो ये भी इस मिशन के अंडर करे थे. सो दिस वाज ऑल विद रिस्पेक्ट टू मिशन मौसम. कुछ और फैक्ट्स हैं कि इसको 5 साल में 2 फेजेस में लॉन्च किया जाएगा. 2000 करोड़ दिए हैं 2025 से 2026, और दूसरा फेज है आपका 2026 से ऑनवर्ड्स.
और जो हमारा इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका एक और विजन डॉक्यूमेंट है 2047 का, उसमें हमने बोला है कि हमें 100% डिटेक्शन करना है सीवियर वेदर का एट विलेज एंड दी हाउस होल्ड लेवल, मतलब घर घर के लेवल तक एक्सट्रीम वेदर का डिटेक्शन करना, स्पेशली विलेजेस में। तो दिस इज योर करंट टारगेट फॉर 2047। एंड फॉरेस्ट एक्यूरेसी हमें कहाँ अचीव करनी है? 100%। एटलीस्ट 3 दिन का, नेक्स्ट आप गूगल देखते हैं कि अगले 3 दिन की जो हमारी एक्यूरेसी होती है, कई बार दिखाता है बारिश होने वाली पर नहीं होती है, ठीक है? तो हमें वो 100% एक्यूरेसी रिसीव करनी है 3 दिन की, 5 दिन में 90%, 70% इन 10 days, ठीक है? एंड वी वांट 0 डेथ्स अंडर दिस विजन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर वेदर events, extreme weather events. So this is our targets. Next question, which organization releases global risk report? It is your World Economic Forum. तो अब ये रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, इट्स एनुअल रिपोर्ट। तो ये क्या बताते हैं कि एंटिसिपेटेड रिस्क रीजन वाइज, कंट्री वाइज एंड अक्रॉस द ग्लोब ओवर द शॉर्ट टर्म, दैट इज 2 साल में और 10 साल में, क्या हमारे को सबसे ज्यादा किसी कंट्री को, किसी रीजन को या पूरी दुनिया को कौन कौन सी रिस्क हैं? तो इंडिया के लिए इन्होंने बोला है टॉप 5 रिस्क कौन से हैं? एक तो वाटर सप्लाई शॉर्टेज होने वाली है, एक मिस इन्फॉर्मेशन, अनदर थिंग इज इरोजन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेक्स्ट इज पोल्यूशन, एंड द फिफ्थ वन इज लेबर एंड दी टैलेंट शॉर्टेज। तो वाटर सप्लाई फाइट्स तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, नाउ बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, everywhere, plus we know groundwater has severely deteriorated its quality as well as it has gone deep down. So already water supply shortages we are facing. Misinformation से आपका जैसे law and order situations create हो जाती हैं, आपका talent shortages is there because with respect to new technologies coming in, we have still have less skill set of people with टॉप नॉच स्किल्स, और जो भी हो रहा है वो ब्रेन ड्रेन हो जाता है आपका, बाहर चले जाते हैं जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के हैं, तो इससे हमारी जॉब पे भी इफेक्ट पड़ेंगे। सो टॉप ग्लोबल रिस्क क्या है जो पूरी दुनिया को है अगले 2 साल में? तो यही है मिस इन्फॉर्मेशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जैसे रशिया यूक्रेन, वेस्ट एशिया यू कैन सी, आप इजराइल हमास अभी देख रहे हैं, तो और सच कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी इंक्रीजिंग। The long term, we'll see biodiversity loss, extreme weather events, and critical changes in the Earth system. So this was all in the global risk. Other are like geopolitical issues, trade protectionism between US, China, as it is happening, tariff barriers, non-tariff barriers protection is being applied under the garb of protectionism by various countries. So such things are going to cause these are the top risks for the globe. Now we'll also see something about this World Economic Forum. Isko this is very famous. We know that this forum was founded by Klaus Schwab in 1971 as European Management Forum, which emphasize on the long-term benefit for all the stakeholders. First thing is it's not an intergovernmental body, कि खाली सरकार की बॉडी नहीं है, इसमें प्राइवेट लोग भी हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, प्लस इट हैज मेंबरशिप फ्रॉम योर गवर्नमेंट ऑल्सो। सो इन 1973 इसका नाम बदल के WEF हुआ एंड इसका फोकस बढ़ाया गया टू इकोनॉमिक एंड द सोशल इश्यूज। So this was all in World Economic Forum. Next question is, which of the following statements regarding fundamental particles are correct? The first is quarks are the only fundamental particle that experience all four fundamental forces. So this is wrong. देखो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए 4 फंडामेंटल फोर्स जो यूनिवर्स पे एक्ट कर रही हैं, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जनरल साइंस में, जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आती है,
strong, weak nuclear force, gravitational force, and one other force which comes under this four fundamental forces. So इसमें से चारों forces quark पे नहीं लगती हैं, especially quark is not under the influence of your gravity. तो हम ये देखेंगे क्वार्क्स सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स हैं, उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगती. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज wrong. Neutrinos are electrically neutral particles that interact primarily via strong nuclear force. This is also wrong because neutrinos work under the influence of weak nuclear force. तो ये आपको मिलेगा आपकी फिजिक्स की बुक में, ठीक है, 10th में जो साइंस की बुक है दैट हैज दिस topic you can refer to with respect to the fundamental forces. Electrons are the fundamental particle belonging to the category of leptons. This is correct statement. Now let us see. अभी ये न्यूज में था बिकॉज देर इज बिकॉज एक नया जो फर्मियन है, सेमी डिरैक्ट फर्मियन, एक नया पार्टिकल है, उसकी खोज हुई है. वो एक ऐसा पार्टिकल है that has mass when moving in one direction but not in perpendicular direction. means अगर कोई एक particular direction में एक particle move कर रहा है तो उसकी वो mass exhibit करता है, पर जैसे ही वो perpendicular movement करता है तो उसमें mass नहीं आता. ठीक है, that is why fundamental particles ये आपके न्यूज में थे, तो उस बेसिस पे ये क्वेश्चन है. तो क्वार्क्स डू नॉट एक्सपीरियंस your gravity and neutrinos are neutral but they interact with the weak nuclear force and their interaction with the matter are extremely rare. तो उनकी रेंज भी बहुत कम होती है as well as their strength. तो ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं न्यूट्रिनोज आपके नॉर्मल मैटर के साथ. और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं? लेप्टॉन फैमिली का. तो ऐसे 6 फैमिलीज हैं जिनमें से एक फैमिली होती है लेप्टॉन, और उस लेप्टॉन फैमिली में से इलेक्ट्रॉन पार्ट होता है. और ये 6 फैमिली क्या कहलाती हैं? आपकी फंडामेंटल पार्टिकल्स. मींस जो हमारी दुनिया है, जो हमारी चीजें हैं, जो यूनिवर्स है, वो इन फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना है, जो मैटर है. ठीक है, तो उन फंडामेंटल पार्टिकल्स की भी कुछ फैमिलीज हैं, उसमें से एक फैमिली लेप्टॉन फैमिली है, और उस लेप्टॉन फैमिली का पार्ट आपका इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, and they do not experience your strong nuclear force. This topic you can read from your science, general science. Now next is 2025 is declared by United Nations as International Year of Glacier Preservation. अब 2023 हमने देखा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था. 25 आपका क्या डिक्लेयर किया गया है? ग्लेशियर preservation, because continuously we are saying some or other country is losing their glaciers and they are in news. So that's why this year has been dedicated to glacier preservation because it is urgent need. And 21st March को हमने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स. यूएन ने डिक्लेयर किया है स्टार्टिंग इन 2025. So we know glacier are the large slowly moving ice pieces, ice masses, and they move under the influence of your gravity, and they are compacted, covered with snow for during from centuries. तो आजकल जो हमें ग्लेशियर्स मिलते हैं, they are the remnants of the ice ages. जो कभी आइस एज हुई थी 10,000 सालों पहले, उसका बचे कुचे जो ग्लेशियर्स हैं वो आज के टाइम में है. बट अब क्या हो रहा है, ये ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं. तो ये ग्लेशियर्स को बचाने के लिए, और ये ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं वो बहुत तेजी से हो रहे हैं ड्यू टू योर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर्स, एंड दिस इज हैपनिंग स्पेशली एट पोल्स. एंटार्क्टिका की न्यूज तो हम रोज सुनते रहते हैं, आज ये पीस गिर गया, आज ये वाला पीस निकल गया. तो सी लेवल भी राइज हो रहा है एंड ग्लेशियर्स आर melting fast. So it is being said even with the major cuts, over a third of world's glacier will melt by 2100. तो हमारे पास glaciers नहीं बचने वाले. That's why this was in news. The another thing
is that याला ग्लेशियर अभी न्यूज में रहा है इन नेपाल लैपटैंग वैली, तो ये आपको नाम पता होना चाहिए. पीटो ग्लेशियर वेस्टर्न कनाडा में, हम्बोल्ट ग्लेशियर in Venezuela. These are the names which are important for the current affairs. So that was why there is some urgency shown with respect to declaration of the year for glacier preservation. Now next is, which of the following is correctly describes SSI mantra? So SSI mantra क्या है आपका? It is India's first indigenous surgical robotic system. तो इंडिया में रोबोटिक सर्जरीज तो हो रही हैं, बट हमारा खुद का इंडिजीनियस सिस्टम है ये आपका एसएसआई मंत्रा, जो कि अभी बनाया गया है. इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम टू रिसीव द रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर टेली सर्जरी. और इस सिस्टम को पहली बार अप्रूवल मिला है किससे? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के अंदर. उसने इस सिस्टम को अप्रूव किया है कि हाँ, आप इस सिस्टम से टेली सर्जरी कर सकते हैं. टेली सर्जरी क्या होता है? आप एक जगह पे बैठ के दूसरी जगह पे सर्जरी कर सकते हैं विद दिस सिस्टम, रोबोटिक सिस्टम. एंड इसके क्या क्या फीचर्स हैं? दैट इट हैज वेरी लो लेटेंसी, दैट इज 30 to 40 मिली सेकेंड्स. मतलब मैंने अभी यहाँ पे कमांड दी तो जो डिले आएगा उसको एक्ट होने में, दैट इज जस्ट 30 to 40 मिली सेकेंड. सो इससे क्या है? वो इमीडिएट एक्शन आएगा विदाउट एनी डिले. तो हम बेटर सर्जरी बेटर प्रिसीशन के साथ कर सकते हैं. एंड वी हैव रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर बोथ टेली सर्जरी एंड रिमोट सर्जिकल ट्रेनिंग. एंड इट्स वर्किंग मैकेनिज्म, जो इसका मॉडल है उसको कहते हैं मास्टर स्लेव कंसोल मॉडल. मींस जहां पे जो मास्टर सर्जन है वो रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं सर्जरी को, allowing the lead surgeon to perform the precise movement while the slave console near the patient execute the commands with robotic instrument. So means suppose someone is sitting at different location, they can give command, जो भी मास्टर सर्जन होते हैं, कि आप ऐसे ऐसे रोबोट को, और वो जो सर्जरी हो रही है वो कहीं और टेबल पे हो रही है, ठीक है. एंड देन दैट कमांड इज बीइंग, पहली चीज तो बहुत कम डिले के साथ, और वो वहां पे एक और इंसान बैठा होगा प्लस रोबोट होगा, वो उस रोबोट से वो सर्जरी परफॉर्म कर सकता है. तो दैट इज योर मास्टर स्लेव कंसोल मॉडल. तो सिग्निफिकेंस है, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी सर्जरीज कर सकते हैं. ज्योग्राफिकल जहां पे हम कई बार नहीं पॉसिबल होती सर्जरीज करना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, तो वहां भी ये सब चीजें करी जा सकती है. तो फास्टर रिकवरी, कम इंट्रूजन बॉडी के अंदर, इंट्रूसिव कम रहता है, लेस इन्वेजिव टेक्निक्स होती हैं, तो फास्टर रिकवरी होती है, ट्रॉमा कम होता है. सो दैट इज व्हाई दिस इज बेनिफिशियल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलरीपयट्टू, an ancient martial art, is associated with which of the following states? And the answer is Kerala. So now recently this Indian Kalaripayattu Federation has accused the Indian Olympic Association of downgrading this Kalaripayattu to the demonstration section of the event and not the competitive section. So what has happened, जो हमारी कलरीपयट्टू की फेडरेशन है उसने कहा है कि जो आपकी ओलंपिक एसोसिएशन है उसने ये स्पोर्ट को, जो कलरीपयट्टू है जो इतना इंपॉर्टेंट है, उसको डेमोन्स्ट्रेशन में डाल दिया है, कंपटीशन स्पोर्ट में नहीं डाला है. कि बस यू कैन शो द परफॉर्मेंस बट यू कैन नॉट compete in that performance. However, we know that it is one of the oldest and the most scientific martial arts known globally, and it is originating from where? कहाँ से है ये? केरला से. तो ये आर्ट फॉर्म क्या दर्शाती है? that the warrior sage Parshuram is credited with establishing this Kalaripayattu, which Bodhidharma, that is a Buddhist monk from South India, has later introduced it to China also. तो ये इतनी एक तो फेमस आर्ट फॉर्म है, इतनी साइंटिफिक है, प्लस it is being
transported, introduced in China by a Bodhidharma Buddhist monk, is still, and it is practiced in China since 5th century AD. It is not been given the competitive section event, the place in the competitive section. So what is the philosophy behind this Kalari Payattu is, it's a traditional gymnasium, and Payattu means a फाइट. तो जिम्नास्टिक फाइट कह सकते हैं आप इसको, जिसमें बहुत माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है. डिफेंस ऑफ 8 एनिमल्स के ऊपर बेस्ड है. इसमें जो अटैक होता है और जो डिफेंस सिस्टम होता है, एंड इसके दो टाइप होते हैं. द नॉर्दर्न विच फोकसेस ऑन द वेपन एंड द लीनियर मूवमेंट, एंड द सदर्न विच फोकस ऑन द मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब कम वेपन के साथ चारों तरफ घूमने वाला होता है सदर्न टाइप ऑफ कलरी Payattu. And there are multiple stages of training. इतना ज्यादा पूछेंगे नहीं, but you can just have a look on the names. तो current context में देखा जाए तो it was included in the competitive sport when in the 37th national games also in Goa, but it was changed. The status of this sport was changed to demonstration sport in 38 national games in Uttarakhand. And this is the fact, despite that Kalari Payattu has won 22 medals, जिसमें 19 गोल्ड थे. मतलब जहां आपके परफॉर्म करने वाले इतने लोग हैं 2023 में नेशनल गेम्स में हमने देखा, वहां पे आप उसको हमारी कंट्री में नेशनल गेम्स में भी आपने उसको डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट में कन्वर्ट कर दिया है. तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने भी कन्वर्ट किया है इसको डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट में. तो दिस इज वन अनदर थिंग. तो अनदर थिंग इज नेशनल गेम्स जो भी हो रहे हैं आपके, जो 25 में होने हैं, वो है आपके अभी जनवरी से फरवरी में होंगे. कहाँ पे? उत्तराखंड में. और इसमें हम 32 स्पोर्ट्स ऐड करेंगे कंपटीशन में, प्लस आपके 4 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स हैं, जिसमें एक है कलरी पयट्टू, योगासन, मालाखम एंड राफ्टिंग. एंड द मैस्कॉट कौन होगा? माउली. माउली इज इंस्पायर्ड बाय योर उत्तराखंड स्टेट बर्ड मोनल. तो टैगलाइन क्या है इस बार के नेशनल गेम्स की? संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रेजोल्यूशन टू जेनिथ. तो दीज आर द some facts which we should know. स्पोर्ट्स से भी आपका यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है. Now next is mission Scott is associated with which of the following sector? And answer is space. तो मिशन स्कॉट क्या है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक इंडियन स्टेट स्पेस में एक स्टार्टअप को लॉन्च करते हुए बहुत तारीफ करी है, जिस स्टार्टअप का नाम है दिगांतरा. एंड दिस दिगांतर is being responsible for this mission Scott. And this mission Scott full form is space camera for object tracking. तो मीन्स स्पेस में नजर रखने के लिए एक बड़ा सा कैमरा है, वो है आपका मिशन स्कॉट. किसने किया है? दिगांतर ने. और ये वर्ल्ड का पहला कमर्शियल सिचुएशनल अवेयरनेस सैटेलाइट है. ये कैमरा स्कॉट बोल रहे हैं, बट ये कैमरा किस पे है? किसी सैटेलाइट पे है. और इसको सैटेलाइट को हमने किससे लॉन्च किया है? स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर मिशन से. और ये दुनिया का पहला कमर्शियल सिचुएशनल अवेयरनेस सैटेलाइट है. इससे क्या करते हैं हम? स्पेस में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑर्बिट में है, स्पेशली इन द लो अर्थ ऑर्बिट, इवन 5 सेंटीमीटर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट भी हम ट्रैक कर सकते हैं. और इसमें पैसे किसने कंट्रीब्यूट किए हैं? आदित्य बिरला वेंचर एंड सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक. नाउ ट्रांसपोर्टर मिशन आपका स्पेस एक्स का मिशन है, दैट वी डू नॉट नीड टू नो मच. अनदर थिंग इज नेत्रा प्रोजेक्ट भी है. नेत्रा प्रोजेक्ट में इसरो का है, जिसमें स्पेस सर्वेलेंस एंड ट्रैकिंग नेटवर्क लगाया गया है. तो हमारा एक तो प्राइवेट हो गया दिगांतर वाला, जो कि कमर्शियल है, वर्ल्ड का पहला. एक इसरो का है नेत्रा प्रोजेक्ट, और जो दिगांतर है वो लॉन्च कहां से हुआ है? आपका ट्रांसपोर्टर मिशन ऑफ योर स्पेस एक्स. और दिगांतर ने मिशन स्कॉट लॉन्च किया है. दिगांतर आपका स्टार्टअप है. तो प्राइम मिनिस्टर जी ने इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करी है.
तारीफ के काबिल भी है. So we should know about this mission ESCOT. Now let us move on to our mains question section. The first question is, what do you understand by nanotechnology and how is it helping in the health sector? So first thing is, हमें नैनो टेक्नोलॉजी की हमेशा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसमें एक डेफिनेशन देनी है. एंड कुछ ऐसी डेफिनेशंस होती हैं साइंस एंड टेक में, जैसे GS3 के पेपर के में से एक क्वेश्चन है कि जो हमें याद रखनी है. जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है आपकी? इट रेफर्स टू मैनिपुलेशन, डिजाइन, एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल एट नैनो स्केल 1 to 100 नैनोमीटर. तो ये टर्म, ये फैक्ट हमें लिखना है, दैट इज 1 to 100 नैनोमीटर. इससे हम ऑल्टर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं नैनो स्केल पे. सो इससे क्या होता है? वी कैन ऑल्टर द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी टू क्रिएट अ बेटर फंक्शनल सिस्टम्स एंड मटेरियल्स. सो हेल्थ सेक्टर में नाउ विल डायरेक्टली कम टू द बॉडी पार्ट, जो इसमें मेन चीज पूछी गई है. पहले आपने बता दिया नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, देन विल कम टू हाउ इज इट हेल्पफुल इन हेल्थ सेक्टर. सो सबसे पहले ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे? इट कैन डू टारगेटेड ड्रग डिलीवरी टू द डिसीज्ड सेल. कोई भी पर्टिकुलर बीमारी किसी पर्टिकुलर सेल की है, जैसे कि वहीं पे जाके दवाई दे दो, बाकी जगहों पे उसके साइड इफेक्ट्स नहीं आए. फॉर एग्जाम्पल डॉक्सिल एक आपका नैनो पार्टिकल का एग्जाम्पल है. इट्स अ लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन विच टारगेट योर कैंसर सेल इफेक्टिवली. देन वी कैन ऑल्सो डू व्हाट? कंट्रोल रिलीज. तो वहीं पे जाके जितना अमाउंट में कंट्रोल मैनर में ड्रग आपको एफिकेसी के हिसाब से रिलीज करना है, तो हम वो नैनो टेक्नोलॉजी से मैनेज कर सकते हैं. डायग्नोस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन इमेजिंग वी यूज नैनो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड. In MRI and CT scan, there are biosensors that detect cancer markers at early stage. Then, in regenerative medicine, for example, hydrogel-based nanostructure for skin tissue repair. कहीं पे कट लग जाता है तो हाइड्रोजेल लगा लेते हैं, तो वो रिपेयर हो जाता है, रादर देन टाक्या लगा रहे हैं जो दिखता भी नहीं है. सो सच टाइप थिंग्स आर ऑल्सो टिश्यू इंजीनियरिंग. Then antimicrobial treatment, silver nanoparticles are used in wound dressing and coatings. Antimicrobial डाल के आप वहां पे रख दें, वो पार्टिकल दिखेगा भी नहीं, उसमें एंटी माइक्रोब्स होते हैं. Then vaccine delivery, immune response, where we have used the lipid nanoparticles, especially in the mRNA vaccine that were used in COVID-19. So these are some applications. तो व्हाट आर द, हमने एप्लीकेशन लिखेंगे बॉडी में जो भी हमें पूछा गया है, विद साइड में 2 स्मॉल बॉक्स बना के बेनिफिट्स भी लिख सकते हैं, कुछ चैलेंजेस भी विल मेंशन, देन विल कंक्लूड आवर आंसर. तो चैलेंजेस में विल राइट दैट देयर मस्ट बी कंपैटिबिलिटी एंड टॉक्सिसिटी इश्यूज देयर कैन, कि कई बार हो सकता है हमारा पार्टिकल हमारी बॉडी से मैच नहीं होए. देयर कैन बी हायर कॉस्ट इन्वॉल्व, मैन्युफैक्चरिंग करना उसकी एट सच स्मॉल स्केल इज वेरी tough. Dedicated labs are required, which are very less. Dedicated skill set of people is required. Plus the regulation part, the comprehensive regulator एक ग्लोबली एक वो नहीं है, प्लस इंडिया में भी नहीं है. तो उससे क्या होता है, जो नैनो पार्टिकल में आप क्या चेंज ला रहे हैं उसमें एथिक्स और रेगुलेशन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये हमारे कुछ चैलेंजेस हैं. बेनिफिट्स क्या है? दैट वेरी हाई प्रिसीजन प्लस कॉस्ट एफिकेसी कैन बी अचीव बिकॉज डोज दवाई की कम लगेंगी, कम डोज पे ज्यादा काम हो जाएगा, तो पैसा कम लगेगा. प्लस मिनिमम इन्वेजन मींस इस बहुत स्मॉल प्रिक हो या कुछ हो, नीडल की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, तो आपका इन्वेजन कम रहेगा. So that is how we can write the answer, and we can conclude like nanotechnology represent a paradigm shift in your healthcare, offering innovative solutions. So there are challenges, but as the field evolves, it has transformative potential. We can conclude like this. Okay. Now coming to our next question, that is, what are the potential consequences of India becoming an aged economy before achieving full economic development? तो इसमें हम पहले मेंशन करेंगे
कि एजेड इकोनॉमी होती क्या है, ठीक है। देन वी विल टेल इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो अभी हम बोलते हैं हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज्यादा है, ओवर 68% ऑफ पॉपुलेशन इज इन द वर्किंग एज ग्रुप। तो एजेड इकोनॉमी क्या है? एजेड इकोनॉमी refers to your demographic structure in which significant proportion of population is elderly, typically due to low birth rate and high life expectancy. अभी एजेड इकोनॉमी वो होती हैं जहां पे जो ओल्ड एज है उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, और जो बर्थ रेट है, जो न्यू बेबीज बॉर्न होते हैं, वो एज इकोनॉमी डेवलप्स, एज पीपल गेट मोर एजुकेटेड, तो वो कम हो जाते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा डेवलप कंट्री होती है उतनी बर्थ रेट्स लेस होते हैं, एंड आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती है एज वी प्रोसीड इन द टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमी एक टाइम के बाद अपना फुल पोटेंशियल पे आके वो एजेड कन्वर्ट हो जाती है। जो एल्डरली सेक्शन है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, और जो यूथ होता है वो उनको सपोर्ट करने के जो परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है, तो सपोर्ट करने में लेस रहता है, ठीक है। इट डजंट वांट द बर्डन ऑफ दैट एजेड इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया अभी इस स्टेज पे नहीं पहुंचा है, एंड वी हैव जापान में वी आर विटनेसिंग दिस ट्रेंड, क्योंकि इंडिया अभी इस स्टेज पे है कि हमारी यूथफुल पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हम अपना फुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को इफ वी हैव नॉट capitalize on this demographic dividend, then it could turn into an aged economy, means हमारा full development नहीं हो पाएगा और हम aged economy बन जाएंगे। तो इसके क्या consequences होंगे? Now let us see. The first consequences is that labor force will decline and will eventually affect your economic growth. अब जैसे जैसे हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन, दैट इज पीपल फ्रॉम 15 to 64 ईयर्स, ये कम हो जाएंगे, तभी लोग कम होंगे, तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, ओवरऑल इकोनॉमिक जीडीपी आउटपुट कम हो जाएगा, तो ग्रोथ कम रहेगी। और जितनी भी सेविंग्स होती हैं लार्जली वो कौन करता है? आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन। जो ओल्ड एज होते हैं उनकी सेविंग रेट्स कम हो जाते हैं, तो दैट विल ऑल्सो हैम्पर द इन्वेस्टमेंट, कैपिटल कम हो जाएगी जो कंपनीज होती हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो दैट विल अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी रेशियो, मीन्स दैट पीपल दैट आर आइदर टू यंग टू ओल्ड टू वर्क आर डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग एज ग्रुप, तो उनका जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा, एंड दे विल पुट सिग्निफिकेंट प्रेशर ऑन द वर्किंग एज। जो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में वो कम हो जाएंगे, और जो उन पे डिपेंडेंट है इकोनॉमी वो बढ़ जाएंगे, तो प्रेशर बढ़ेगा, डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगा, आपके पब्लिक फाइनेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट क्या करेगी? पेंशन्स में पैसा देगी, हेल्थ केयर में, वेलफेयर स्कीम एल्डरली के लिए ज्यादा चलाएगी, तो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन में या किसी और सेक्टर में जाने की बजाय इन सब में ज्यादा जाएगा, तो कंट्री का डेवलपमेंट रुक सकता है। दूसरी चीज, हमारी पेंशन सिस्टम स्ट्रेस में आ जाएगी, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पे स्ट्रेस होगा, हेल्थ केयर कॉस्ट विल राइज बिकॉज हेल्थ केयर सिस्टम्स ओवरबर्डन हो जाएंगे, तो हेल्थ केयर की प्राइस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज, क्योंकि ओल्ड एज में लेस पोटेंशियल होता है इनोवेशन का, सो इनोवेशन इन्वेस्टमेंट में स्टैग्नेशन आ सकता है, वर्कफोर्स विल rapidly not be ready to possess newer skills. As a result, there will be aging of the workforce also. Accordingly, there will be some challenges in the urbanization and the infrastructure development. कैसे हाउसिंग डिमांड्स कैसी टाइप की आएंगी इन अर्बन एरियाज में? वैसे ही जहाँ पे सीनियर फ्रेंडली हाउसेज हों, जहाँ पे हॉस्पिटल होंगे, जहाँ पे रिटायरमेंट कम्युनिटीज होंगी, तो सिटीज की प्लानिंग स्ट्रक्चर पूरा प्रेशर में आ जाएगा, और उनको अकोमोडेट करना एल्डरली को
वो स्ट्रेन करेगा, ठीक है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस मोबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस रहता है ओल्ड पीपल के लिए, तो वो लोग ज्यादा काम करने नहीं कर सकते, प्लस वो माइग्रेट भी नहीं करेंगे, तो कोई रीजन में ज्यादा लोग होंगे, किसी रीजन में कम एल्डरली रहेंगे, सो एक डिसबैलेंस इन लेबर विल बी created. So what will be the impact on the consumption pattern? अब कंजम्पशन प्रेफरेंस एल्डरली की अलग होती है, नॉर्मल यूथ की अलग होती है। यूथ बिलीव इन एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, हाउसिंग, एंड एल्डरली वांट टू स्पेंड इन हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स एंड सच थिंग्स। देयर विल बी रिडक्शन इन द डिमांड एट द डोमेस्टिक लेवल, मीन्स जो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो इतनी ज्यादा बड़ा मार्केट है। वाई ऑल द कंपनीज आर getting attracted to India? Because we are a big market, because there is a youth. बट अगर ये यूथ एजेड हो जाता है, ठीक है, अगर पॉपुलेशन में एजेड बढ़ जाएगा तो हमारी डोमेस्टिक डिमांड कम हो जाएगी और कंट्री का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पोटेंशियल भी खतरे में आ जाएगा। सोशल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो होते ही हैं। जितना ज्यादा जनरेशन्स में डिवाइड आएगा, जितनी ज्यादा एज में डिवाइड आएगा, उतना सोशल अनरेस्ट होंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होंगी, कोर्ट केसेस बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ एल्डरली को सपोर्ट करना एक एक टाइम तक ही होता है, फिर वो बर्डन लगने लगता है, तो एक डिससैटिस्फैक्शन आ जाएगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड देयर विल बी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज दैट विल ऑल्सो राइज। सो पॉलिटिकल चेंजेस क्या होंगे? नाउ एल्डरली विल बिकम अ वोटिंग ब्लॉक, so they will also influence the decisions. So policies will accordingly change that cater to the elderly people. So these can be the consequences. तो हमें इसका solution भी लिखना होगा। अगर हम आंसर लिख रहे हैं तो solution में क्या लिखेंगे कि देखो, हमें इंडिया को अभी हायर फर्टिलिटी को encourage करना है, मोर बर्थ रेट्स को इंक्रीज करना चाहिए, स्किल में इन्वेस्ट करना चाहिए, और पेंशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने चाहिए, सो दैट कि जो एल्डरली है वो अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी पहले ही बैलेंस करके चले ड्यूरिंग व्हेन दैट एल्डरली पर्सन इज इन द वर्किंग एज ग्रुप, एंड इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए दैट केटर टू बोथ द सेक्शन, यंग एंड द ओल्ड इक्वली. So how we will conclude such question? We will write that India's transition into an aged economy before achieving the full economic development presents significant challenges. Means हमें पता है challenges तो हैं, but we must take proactive measure to mitigate the adverse consequences. So उसके लिए as we have given some way forward, तो आप mention कर सकते हो कोई और भी चीज, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जिसमें वी विल राइट इंट्रोडक्शन ऑफ एजेड इकोनॉमी क्या होती है, देन कॉन्सिक्वेंसेस को हम सब डिवाइड करके बॉडी में लिखेंगे, एंड विल प्रेजेंट अ वे फॉरवर्ड. आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ पॉइंट्स, यू कैन रिमेंबर few, then a very small balanced conclusion. So this was all in today's lecture. Thank you very much.